हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें जो हम करेंगे नेचर ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। इसका मतलब होता है विषय के रूप में भूगोल का स्वरूप, जिसमें हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे। ये टॉपिक कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में नेचर ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन है तो इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। There is a most important chapter arrive here, nature of geography as a discipline. There is the most important chapter. There is the most important here point arrive a geography in a daily life. What do you mean to hear a geography in a daily life? There is a most important topic, and you must have noticed that the earth as a surface ever changing. In general, the nature of phenomenon like a mountain, rivers, lakes, etc. A change slowly will the cultural element like a buildings, road, crop, change of fast. Traveling from one place to another, you notice that a tree numbers and types of tree is a change from area to area. All this is because of the continuous interaction between to the environment in which we live in and their way we use it. The study of geography is about absorbing such a pattern. Another aspect of geography is to be understand the factor or reason behind area differentiations. How do a social, culture, economics, and geographic factor change our physical landscape and create a new or alternated landscape by the human interventions? For example, human settlement or transformation of forest and varying land for living as a purpose by human beings. Geography is often thought of the art of making of study of map. That is the most important, the art of making and study of maps or the geography. The maps give us a much more correct and graphical view of the way of the earth's surface look compared to a picture of drawing. As earlier, even today, geographical information about an area is available through the report and travel diaries and gazettes. At the present, the maps can be drawn by using satellite image using to the is a graphical information systems tools, means GIS. There is a geographical information system. Computer easily convert the information from a satellite image into the map to show that change the development can vary about. Such information of the benefit to be society, such as a map marker, are is greater demand today. No way of the days is a geographers, is a engineers, environmental scientists, cities planner, and social scientists, and many other learn for the GIS to understand to the earth better. Geographic is not on the investigate is what is where on the earth, but also why it is the there. Geographer is a study the location of the activities is a carefully identify pattern using to map and find out the reason for these patterns. And the area are there described based on the distribution of the land form. There are population, house, types, and the agriculture. They discover the linkage and movement between to the place are able to the infer their apparel processing that are working in a area. That is the most important
Today, all over the world, there are a problem related to the providing food security, health, effective energy use, and environmental conservation. Equally important are equalities issue of sustainable development. All these can be achieved by using our source in a sustainable way. A study of geography is therefore necessary to learn more about the environmental process and to understand how land use planning can help us to overcome problems. In the way, the geographical is a science of the space. And secondly, here, maps are essentially tools of geography. And their third here, a digital geographical information system is a new tool for making a maps. And there's the most important. And fourth here, spatial is a planning can be done using of both maps and the study of geography. There is a next here. Their basic concept. Geography has been defined differently through the different periods of its history. Geographical work is ancient Greece had a flowing two distinct tradition. One was the mathematical tradition, which was a focus on fixing the location of place on the Earth's surface, and the other was a gatherings geographical information through a travel and field work. That is the most important. And according to them, the purpose of geography was to provide a description of the physical feature and condition in different parts of the world. The emergence of the regional approach in geographical also imposes their descriptives or character of geography. According to the Humboldt, is a geography is the science related to the nature and it is study and describe all the material things found on the earth. Another important school of thought that defined geography as the study of man-environment relationship. That is the most important here, man-environmental relationship. There is geographical as a study of Earth's surface. There is the most important things here. Geographical as the study of Earth's surface. And second here, geography as the study of man-environment relationship. There is also important कि geography as the study of man-environment of relationship. यहाँ पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर आया है ज्योग्राफी का फर्स्ट है। कहते हैं अगर फर्स्ट नहीं करते हो तो आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं होगा, तो इसलिए ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है। अगर हम आज चैप्टर की बात करें तो हम विषय के रूप में भूगोल का जो है स्वरूप के जो है चैप्टर हम कर रहे हैं फर्स्ट, जिसका पहला टॉपिक यही कहता है कि दैनिक जीवन में भूगोल। देखिए दैनिक जीवन में भी जो है भौगोलिक का जो है अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आखिर आप सोचिएगा कि भूगोल का जो है हमारे जो है दैनिक जीवन में क्या अर्थ है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि पृथ्वी की सतह पर लगातार परिवर्तन होता रहता है, ये आपको देखने को मिला ही है। सामान्यतः प्राकृतिक तत्व जैसे पर्वतें, नदियां, झील आदि में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, और जबकि जो है सांस्कृतिक तत्व जैसे भवन, सड़कें, फसलें आदि में तेजी से परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते समय आप महसूस करते होंगे कि वृक्षों की संख्या व आकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में परिवर्तन होते चले जाते हैं। यह सब पर्यावरण जिसकी हम रहते हैं तथा उसका प्रयोग करते हैं कि लगातार अंतक्रियाएं के फलस्वरूप हो रहा है। भूगोल इस प्रकार के प्रतिरूपों का अध्ययन करता है, और भूगोल का एक अन्य पक्ष क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारकों या कारणों को समझने में है कि किस प्रकार जो है सामाजिक, संस्कृति, आर्थिक और जनकिकीय कारक जो है भौतिक जो है स्थल रूप को परिवर्तन कर रहे हैं, और मानवीय हस्तक्षेप के फलस्वरूप जो है नवीन स्थल रूपों का जो है निर्माण हो रहा है। यानी मानव गतिविधियों के कारण बहुत से जगह जो है जहाँ नए नए चीज़ों का जो है निर्माण हो रहा है, जो आपको देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए मानव वन या बंजर भूमि का प्रयोग मानवीय अधिवास के रूप में कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है। कहते हैं इंसान ने भौगोलिक जो स्थिति को जो है बिल्कुल ही परिवर्तन कर दिया है, और आज ये देखने को भी मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भूगोल को प्रायः मानचित्र निर्माण और अध्ययन की कला के रूप में जाना जाता है। मानचित्र में रेखा चित्रों की अपेक्षा पृथ्वी के धरातल पर अधिक सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत भी करता है। पूर्व की भांति आज भी किसी क्षेत्र का भौगोलिक विवरण, रिपोर्ट, यात्रा डायरी और गैजेटरीज में उपलब्ध होते हैं। यानी ये चीज़ें सारे चीज़ जो आजकल है आधुनिक काल बन गया है, और यहाँ पर हर चीज़ जो है गैजेट के रूप में आपको दिखेगा। कहते हैं वर्तमान में मानचित्र की संरचना भौगोलिक सूचना तंत्र यानी
एस के रिगार्डिंग होता था। यानी अगर आप देखोगे तो मानचित्र प्राप्त करके जो है हम किसी भी क्षेत्र के जो है विषय में जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप ये देखते भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं इन उपकरणों के द्वारा जो है उपग्रह छात्र छाया चित्रों के प्रयोग से किया जा सकता है। आपने देखा भी होगा, अगर आप अपने क्षेत्र के दृश्य देखना चाहते हो तो इसका भी सैटेलाइट जो है आपके समक्ष भेज देता है। इसमें सिर्फ आपको गूगल पे रिसर्च करने की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर जो है सरलता से उपग्रह छाया चित्रों की सूचनाओं को जो है मानचित्र में परिवर्तन कर देता है, जो विकास में हुए परिवर्तन को भी दर्शाता है। क्योंकि मानचित्र आपको पता है कि हर समय में खींची जाती है, हर कुछ काल में खींची जाती है, और जो भी परिवर्तन होता है वो चित्रों में साफ दिख जाता है। तो ये मानचित्र जो आते हैं या मानचित्र बनते हैं, ठीक है, वो उपग्रह द्वारा भेजा गया छायाचित्र के रिगार्डिंग ही बनाया जाता है। इस प्रकार की सूचना से समाज को लाभ होती है, क्योंकि इससे हम अपने क्षेत्र में हो रही बदलाव के विषय में भी सही जो सुचारू रूप से जान सकते हैं। वर्तमान में इस प्रकार के मानचित्रकारों की बड़ी मांग थी। आजकल पृथ्वी के बेहतर ढंग से समझने के लिए भूगोलवेत्ता, अभिवेत्ता और पर्यावरण वैज्ञानिक, नगर योजनाकार और सामाजिक वैज्ञानिक तथा अन्य लोग भी भूगोलिक जो सूचनाओं का यंत्रों का प्रयोग सीख रहे हैं। क्योंकि भूगोल के बारे में जानना हर एक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक अगर आपको लैंड का पता नहीं रहेगा, क्षेत्र का पता नहीं रहेगा, तो आप कैसे वहाँ पर कोई जो है घर भी बना सकते हो, कैसे कुछ कर सकते हो। क्योंकि मेन जो होता है यहाँ पर ज्योग्राफी का रीजन देखना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। भूगोल न केवल इस बात की खोज करता है कि पृथ्वी पर कहाँ क्या है, बल्कि यह भी कि कहाँ क्यों है। भूगोलवेत्ता जो है क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति का अध्ययन करते हैं। मानचित्रों के सावधानीपूर्वक प्रयोग से प्रतिरूपों की पहचान और साथ ही इन प्रतिरूपों के बनने के कारणों का जो है हमें पता लगता है। और इसके बाद क्षेत्रों का वर्णन स्थल रूपों के वितरण और जनसंख्या, मकानों के आकार और कृषि के आधार पर किया जा सकता है। यानी आज के समय में भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसके बहुत कुछ जान सकते हैं। ठीक है, हम स्थल रूपों को भी जान सकते हैं, वितरण को भी जान सकते हैं कि स्थलों की वितरण किस प्रकार है, वहाँ पर जनसंख्या कितनी घनत्व है, मकानों के आकार किस प्रकार है, कृषि के आधार क्या होती है। तो ये सारे जो है जो भूगोल के थ्रू ही हम जानना हमारे लिए आसान हो जाएगा। वे स्थानों के बीच के संबंधों और आवागमन की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा उसे क्षेत्र में होने वाले स्थानिक प्रक्रियाओं के विषय में जो निष्कर्ष भी निकालते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है यहाँ पर। वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण विश्व खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा के प्रभावकारी उपयोग और पर्यावरण संरक्षण जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं हमारे वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा की प्रभावकारी उपयोग और पर्यावरण संरक्षण जैसी समस्याएं जो है आए दिन अपना सर खड़ा कर ही रहा है। कहते हैं समानताओं के मुद्दे और टिकाऊ विकास भी जो है सामान्य महत्व रखते हैं, और इस सभी की जो है प्राप्ति संसाधनों स्वतंत्र रूप से प्रयोग द्वारा ही किया जा सकता है। पर्यावरण प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी तथा यह समझने में कि समस्याओं के समाधान में भूमि उपयोग योजना किस प्रकार सहायक हो सकती है, भूगोल का अध्ययन आवश्यक यहाँ पर माना जाता है। यदि ये बात हम संक्षेप में करें तो ये साफ यहाँ पर जो है इन सब बातों का जो निचोड़ निकलता है हम 4 पॉइंट में समझ सकते हैं। क्योंकि भूगोल के स्थान का एक विज्ञान है, यानी भूगोल स्थान का एक विज्ञान है, एरिया यानी सरफेस एरिया का एक विज्ञान है। मानचित्र भूगोलवेत्ताओं के लिए आवश्यक उपकरण है, क्योंकि मानचित्र से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। आपने देखा भी होगा कोई भी घर बनाने से पहले हमें उसका डिज़ाइन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो कहते हैं इंजीनियर के पास जाकर हम डिज़ाइन बनवाते हैं, तो मानचित्र से ही वो सारी जो है पूरी बातें लिया जा सकता है। मानचित्र को बनाने के लिए अंकीय भूगोल सूचना तंत्र नए उपकरण है, लेकिन आजकल देखा जाए तो अंकीय भूगोल सूचना तंत्र जो है नए उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। भूगोल के अध्ययन और मानचित्रों के उपयोग से स्थानिक योजनाएं बनाई जा सकती है, क्योंकि भूगोल के अध्ययन से ही आप जो है स्थानीय जो योजना बनाने में सक्षम हो सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आधारभूत संकल्पनाएं। देखिए आधारभूत संकल्पनाएं का अर्थ क्या होता है। इतिहास के विभिन्न कालों में भूगोल को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। तो ये कोई दो राय नहीं, सच्चाई है कि इतिहास में अगर देखा जाए तो भूगोल को जो है विभिन्न रूपों में परिभाषित किया भी गया है और बताया भी गया है। प्राचीन यूनानी विद्वानों ने भौगोलिक धारणाओं के 2 पक्षों में रखा है। प्रथम जो है गणितीय पक्ष है, जो कि पृथ्वी की सतह पर स्थानों की अवस्थिति को केंद्रीय करता था, तथा दूसरा जो है यात्राओं और क्षेत्रीय कार्य द्वारा
भूगोलिक सूचनाओं को एकत्र भी करता है, यानी भूगोल में क्या क्या चीज़ें हैं उन सब की जो है एकत्र करना इसका परम धर्म है। इनके अनुसार भूगोल का मुख्य उद्देश्य विश्व के विभिन्न भागों की जो है भौगोलिक आकृति और दशाओं का वर्णन भी करना होता है कि विश्व में कैसा क्षेत्र है, कैसा भूगोल है, क्या इसकी आकृति है, कैसा इनकी दशा है। तो ये सब चीज़ों का भी अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। भूगोल में परिदृश्य की उपागमन का उद्भव भी जो है भूगोल की वर्णनात्मक प्रकृति पर बल देता है। यानी हेमरोल्ट के अनुसार भूगोल प्रकृति से संबंधित विज्ञान है और यह पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी साधनों का अध्ययन एवं वर्णन करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बना देता है। यहाँ पर एक बात आया कि महत्वपूर्ण विचारकों ने भूगोल को मानव पर्यावरण अंत संबंधों के रूप में परिभाषित किया है। देखिए बहुत सी बातें यहाँ पर रहती कि भूगोल पृथ्वी तल के अध्ययन के रूप में देखा जा सकता है या भूगोल मानव पर्यावरण अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में भी देखा जा सकता है। तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको जानना जरूरी था। अब देखते हैं आगे हमारा टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। व्हाट यू मीन टू डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी हेयर? द फर्स्ट हेयर ascent period or development of geography, the earliest record of illiterate of the interest of the scholar in understanding the physical dominance of the earth by making map and astronomical is the measurements. The Greeks are given to the credit of began to the earliest geographers is a prominent among them began to the however Herodotus and the Hellas, Astros and Arthosathens. And second development here of pre-modern period. That is the most important here of pre-modern period. This period is starting from to the middle of 50th centuries and continually with the 18th century earlier provide us the amounts of information about the physical and culture natures of the world by the travels and exploration of earlier geographer. The earlier is the 17th century, a witness of the beginning of a new specific geography. Christopher is a Columbus and the Vasco da Gama. There is the discover for the India of the Vasco da Gama and is a Festus in Magellan and Thomas Cook were the important explorers that travel among those. And various account is a Bondet and the Milton help to the geographers of the period and they contribute in the development of the cartographics and discovering new land and developing a geographic into a scientific discipline. There is the most important discovery here is a pre-modern period. The next here is a modern period. Their lecture and the Humboldt are the frequently referred to us to the founder of modern geography. Generally, is the latter half of 19th century is considered as a period of modern geography. The first modern geographer is a true sense was the Rattazal as who built there is a structure of modern geography on the foundation laid down by classical geographer. There is the most important here. The next here is the development or recent period. The recent period is the most important development. The development of geography during the post is the Second World War period has been to the very rapidly. The America and the Europeans geographers was the Stone is a have to contribute the maximum during this phase. And the Stone is described as geographical as a science dealing with the areas differentiation the present day and geographers look upon traditional approach and systematic approach as a complementary rather than to the contradictory. यहाँ पर हमारे समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है भूगोल का विकास। देखिए भूगोल का विकास कैसे हुआ। कहते हैं भूगोल के बारे में हर समय कुछ न कुछ जो है इन्फॉर्मेशन इंसानों ने इकट्ठा किया और धरती को जानने की बहुत ही जिज्ञासा ने उसको बहुत कुछ जो है सिखा दिया। अगर हम बात करें प्राचीन काल की तो प्राचीन काल में ये बात साफ जाहिर हो गया था कि आरंभिक प्रमाणों के अनुसार इस समय के विद्वान मानचित्र निर्माण और खगोलीय मापों द्वारा पृथ्वी के भौतिक तत्वों को समझने की कोशिश कर रहे थे। और भूगोल में आरंभिक विद्वान देने का श्रेय यूनान को ही जाता है, क्योंकि यूनान ने ही भूगोल पर जो है काफ़ी रिसर्च भी किया था, जिसमें प्रमुख थे हेमर्स, हेरोडोटस, लेथस, अर्थुस और द एंड्रोस्थेनिस। ये सारे के सारे साइंटिस्ट जो थे बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने भूगोल की खोज में जो है विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उसके पश्चात अगर हम समय काल जाते हैं पूर्व आधुनिक काल के समय, तो इस समय भी बहुत इंपॉर्टेंट खोज हुई जो कि बहुत ज़रूरी था। और कहते हैं इनसे बहुत चीज़ें के जो बारे में हमें जानना। वास्को डी गामा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे जिन्होंने जो है भारत की खोज करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यही बात पूर्व आधुनिक काल के अंतर्गत बताया जा सकता है। यह काल 15वीं शताब्दी से मध्य से शुरू होकर 18वीं शताब्दी के पूर्व तक चला। और यह काल आरंभिक जो है भूगोल वार्ताओं की खोज और अनुवाद द्वारा विश्व की भौतिक एवं संस्कृति प्रकृति के बारे में विविध ज्ञान प्रदान करता है। कहते हैं 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल नवीन वैज्ञानिक भूगोल की शुरुआत का गवाह बना और क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगेलन और थॉमस कुक इस काल के प्रमुख अन्वेषकों में से एक माने जाते हैं। और वेनियस कॉन्स और हेम्बोल्ट और रीटर इस काल के प्रमुख जो है भूगोल वर्ताओं थे। और इस विद्वानों ने मानचित्र कला के विकास में योगदान भी दिया, यानी इन्होंने मानचित्र पे जो है काफ़ी जोर दिया और नवीन स्थलों की खोज की, जिसके परिणाम स्वरूप भूगोल एक जो है वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित हुआ। और ये जो है आज वैज्ञानिक विषय के रूप में जाना भी जाता है। कहते हैं भूगोल का देखिए जो भी स्टूडेंट इसका अध्ययन करते हैं वो उनके लिए बहुत काफ़ी फायदेमंद रहता है, क्योंकि पृथ्वी के धरातलों के बारे में जानना और उनके जो है पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में समझना ये बहुत काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। उसके पश्चात आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में बहुत चीज़ जो है आज जो है डिजिटलाइज कर दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात आता है। अगर रीटर हेम्बोल्ट का उल्लेख बहुत ही आधुनिक भूगोल के स्थापक के रूप में किया जाता है और सामान्यतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का काल आधुनिक भूगोल का काल माना जाता है। वस्तु रेजल्स प्रथम आधुनिक भूगोलवर्ता थे जिन्होंने चश्मत भूगोलवर्ताओं के द्वारा स्थापित नींव पर जो है आधुनिक भूगोल की संरचना का निर्माण किया। यानी आधुनिक काल में काफ़ी जो है भूगोल का जो है विकास हुआ, लेकिन ये जाते जाते नवीन काल में जो है बिल्कुल ही विकसित हो गया। यदि बात हम करें यहाँ पर नवीन काल की, तो कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ और इसमें जो है हर्ट्जसन जैसे अमेरिकी और यूरोपीय भूगोलवर्ताओं ने इस दौरान अधिकतम योगदान दिया। और हर्ट्जसन ने भूगोल को एक ऐसा विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन कराता है। और वर्तमान भूगोलवर्ता ने जो है प्रादेशिक उपगमा और क्रमबद्धता जो उपगमा को जो है विरोधाभासी की जगह पूरक जो उपगमा के रूप में देखते हैं, जो कि बहुत काफ़ी जरूरी भी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अराइव देयर स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। The geography has a no acquire of the status of a science that explains their arrangement of various nature and culture feature on the earth surface. Geography is a holistic and the interdisciplinary field of the study of engaged in understanding the changing species structure from past to the future. Thus, the scope of geography is the various disciplines like army service, environmental management, water resource, disaster management, and meteorology and planning and various social science. Apart from that, is a geographer can help in the day-to-day life like tourism, commuting, housing, and healthy related activity. यहाँ पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण आया है हमारा टॉपिक जो है भूगोल का क्षेत्र। देखिए स्कोप ऑफ ज्योग्राफी हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि ये जो है स्कोप के बारे में बताता है। कहते हैं भूगोल ने आज विज्ञान का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, जो पृथ्वी सतह पर उपस्थित विविध प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूपों की व्याख्या करता है। भूगोल एक जो है समग्र और अंत संबंधित क्षेत्रीय अध्ययन है जो स्थानीय संरचना में जो है भूत से भविष्य में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन करता है कि भूत से भविष्य में क्या परिवर्तन होगा। इस सभी बातों पर जो है यहाँ पर चर्चा की जाती है। और इस तरह भूगोल का क्षेत्र जो है विविध विषय जैसे सैन्य सेवाएं, पर्यावरण प्रबंधन, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, मौसम विज्ञान, नियोजन और विविध सामाजिक विज्ञानों में से एक माना जाता है। इसके अलावा जो है भूगोलवर्ताओं ने दैनिक जीवन से संबंधित घटनाएं जैसे पर्यटन, स्थान परिवर्तन, आवासों और स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलापों में जो है सहायक हो सकता है। तो कहा जा सकता है कि भूगोल का जो क्षेत्र है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर जगह पर जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, चाहे वो पर्यटन हो, स्थान परिवर्तन हो, आवास हो, स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलाप हो। ठीक है, तो हर जगह जो है इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा हो, चाहे सैन्य सेवाएं हो, पर्यावरण प्रबंधन हो, जल संसाधन हो, आपदा प्रबंधन हो, मौसम विज्ञान, नियोजन और विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में जो है भूगोल का क्षेत्र देखने को मिल सकता है।
The next topic is here approaches to the study of geography. There is the most important approaches to the study of geography. Today, geography is the only discipline that is bearing all the nature and human science on a common platform to understand the dynamic of spatial configuration of the Earth's surface. There are two main is approach here in the geography, the systematic and regional. There is systematic and regional. There is the most important. The first point is systematic approach. A study of specific nature or human phenomenon that give rise to the content of spectral patterns and structure on the Earth's surface is called systematic study. Ordinarily, systematic geography is divided into four main branches. There is the most important. There is geography divided into the systematic. There are four main branches. The first here is a branch is a physical geography. Second here is a biogeography, including environmental geography. And third here human geography. And fourth here geographically method and techniques. There is a systematic here geography is the fourth point is the most important here. There is a repeating physical geography is a biogeography, human geography and geography method and techniques. There is a first, it is a deal earth system like atmosphere, air and hydrosphere, water, and the lithosphere is the earth solid rock and biosphere. There is the most important first, the physical geography. Physical geography is a deal by atmosphere mean air and hydrosphere mean water and lithosphere is the earth solid rock and the biosphere which is the encompassed all the earth as a living organism. And second here biogeographical including environmental geography. There it is a focus on various kind of forest, grassland, distribution of the flora and the fauna, human nature relationship and the quality of the living environmental and its implication for a human welfare. The next here it is a describe there is a culture, population, dynamic of social, economic and political aspect of space. And third here is important, it's a deal with the method and techniques for a field study, quantitatives and their cartographic analysis to geographical information system and global posting system GIS and GPS and remote to the sensing. There is a most important using here of this. There is a most important things here arrive and their box. Geography has developed in four period. There is ascent period, pre-modern period, and the modern period and the descent. There is also discussed here. A contribution of the Hearthstone is a pioneering in the field of geography in a recent period. A geography is a holistics and interdisciplinary is a field of study of engage in their understanding the changing and the spectral structure at a different territorial level. The next topic is here original geography. That is the most important. Unlike the systematic geography, regional geography, and start with the spatial imprint of their ones are all the systematic geographical processes and is enable and the regional of different size. The regionals could be based on a single factor like is a reliefs, rainfall, vegetation, per capita income. That is the most important. And there could also be a multiplicator regional formed by association of two or more factor and administrative units like a state, districts, tahsil, also is a state and the regions. And the main sub branches of regional geography are here. The regional here, the geographical here branch here, regional study, regional analysis, and regional development. And regional plan include area and community plan. There is a four is the most important here or regional geographical branch. The regional study, regional analysis, and regional development. And regional planning include area and community planning. There is the most important. Important also here one in this box. The main approach in the geography, systematics, regional. There is two main approaches here. And systematic geography is divided into four branches. And regional geography is also divided by four branches.
यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट आया अत्यंत महत्वपूर्ण, भूगोल के अध्ययन की विधि। देखिए भूगोल के अध्ययन की कौन सी विधि है। कहते हैं अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, अगर आप जो है ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि भूगोल के अध्ययन की क्या विधि हो सकती है। और ये कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए जरूरी है। कहते हैं आज भूगोल ही एकमात्र ऐसा विषय है जो धरातल के स्थानिक जो है विन्यास को, ज्ञानतम को समझने के लिए सभी प्राकृतिक एवं मानवीय विज्ञान को एक मंच पर लाता है। कहते हैं अगर भूगोल ही नहीं रहेगा तो समाज कहाँ से, और ये समाज नहीं तो दुनिया कहाँ से। तो भूगोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं यहाँ के पर्यावरण के बारे में जानना, इनकी संरचना के बारे में जानना एक भूगोलिक जो है स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। और ये भूगोल में अध्ययन की दो मुख्य विधियाँ देखी गई है। ठीक, एक तो क्रमबद्ध है जिसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं, दूसरा जो है प्रादेशिक यानी रीजनल। यही दो पे जो है हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर हम बात करें पहला क्रमबद्ध की, तो ये बात ये बताती है कि क्रमबद्ध बताता है यही बात है धरातल में स्थित विशिष्ट प्राकृतिक एवं मानवीय तथ्यों को जो कि कुछ स्थानीय प्रतिरूप में संरचना बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है कि धरातल में स्थित विशिष्ट प्राकृतिक व मानवीय तथ्य जो कि कुछ स्थानीय प्रतिरूप या संरचना बनाते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर बनाता है, ये का अध्ययन जो है क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है। यानी इसी के अध्ययन को हम क्रमबद्ध अध्ययन कर कहते हैं। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहो तो इतना दिमाग में आपने रखना है कि स्थानिक प्रतिरूप या संरचना के बारे में जो हमें अध्ययन करते हैं वो क्रमबद्ध उपगमा अध्ययन के रूप अंतर्गत आता है। और साधारणतः इसका देखा जाए तो क्रमबद्ध भूगोल की 4 शाखाओं में विभक्त किया गया है। और ये 4 शाखाएं कई एग्जाम में देखने को मिला है। चाहे वो देखिए ये पहला जो ब्रांच यही होगा भौतिक भूगोल, दूसरा होगा जैव भूगोल जिसमें पर्यावरण भूगोल सहित इसके अंतर्गत आता है, और उसके बाद मानव भूगोल, उसका भौगोलिक विधियाँ और तकनीक। भौतिक भूगोल का मतलब आपको समझ ही गए होंगे कि यह भौतिक पर्यावरण के विषय की बात कर रहा है। जैव मतलब जीव जंतु के लिए, और मानव के लिए मानव। अब भौगोलिक विधियाँ और तकनीक क्या है, तकनीक भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि आखिर इसमें क्या और कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर पहला जिसके बारे में हम चर्चा किए थे कि जो भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल का मतलब यही होगा कि पृथ्वी के विभिन्न तंत्र जैसे वायुमंडल हो, जलमंडल हो, स्थलमंडल हो या जैव मंडल हो, इन सभी का जो है अध्ययन किया जाता है। यानी कहा जा सकता है कि वायुमंडल के अंतर्गत वायु आती है, जलमंडल के अंतर्गत जल आता है, और स्थलमंडल के अंदर पृथ्वी के ठोस चट्टानें आती है, और जैव मंडल का अध्ययन इसमें आता है। और ये पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं इसी से जो है पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। दूसरी बात जो थी जैव भूगोल, यानी विभिन्न प्रकार के वनों, घास, वनस्पति और वन्य जीवन के वितरण जो है मानव के द्वारा कहते हैं सब में अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें जीवित चीज होते हैं जो कि बहुत जरूरी है, इसे इसको कहते हैं पर्यावरण भी कहा गया है। यदि देखा जाए तो प्राकृतिक संबंध और जैविक पर्यावरण गुणवत्ता और इसके जो है मानवीय कल्याण के निहितार्थ का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह जाता है कि अगर हम मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल के अंतर्गत ये बात आती है कि यह किसी स्थान की संस्कृति, जनसंख्या, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की जो है गतिशीलता का वर्णन करता है। ये सब मानव जो है भूगोल के अंतर्गत आता है। ये बातें जो छोटी छोटी हैं वो आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन क्या आते हैं, तो आप कह सकते हो कि संस्कृति, जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्ष की जो है गतिशीलता इसके अंतर्गत आती है। बात यदि हम करें अंतिम का जिसमें टेक्निक की बात की गई थी, तो यह क्षेत्र जो है अध्ययन की विधि का एक तकनीकी गुणवत्ता, मात्रात्मक, मानचित्र कला, विश्लेषण और भौगोलिक सूचना तंत्र के जो है भूगोल मध्य सूचना तंत्र GIS और जो है GPS का समुद्री संवेदन का अध्ययन करता है। यानी GPS तो आपको नॉलेज होगा ही होगा। तो इन सभी चीज़ों का जो है हम अंतिम चरण में करते हैं। यहाँ पर एक बात आया है भूगोल के 4 जो है कालों के बारे में, जिसके विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भूगोल का जो विकास 4 कालों में हुआ है, जिसके बारे में हमने पहले भी जाना था कि प्राचीन काल थी, पूर्व आधुनिक काल था, आधुनिक कला था और नवीन काल था। ठीक है, ये चारों काल जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे कोई भी आधुनिक काल जिसको भी कह लो। कहते हैं नवीन काल में भूगोल के क्षेत्र में हर्टसन का प्रमुख योगदान रहा है। भूगोल एक समग्र और अंतर संबंधित क्षेत्र का अध्ययन होता है जो कि विभिन्न सतहों पर स्थानिक संरचना में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन से जुड़ा हुआ होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात आ जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है रीजनल भूगोल। यानी रीजनल भूगोल देखिए क्या है, ये एक रीजनल का मतलब है प्रदेशी भूगोल। यानी ये जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है कि ये प्रादेशिक होगा।
हमने अभी सिस्टमैटिक के विषय में पढ़ा, सिस्टमैटिक भूगोल्स के बारे में जाना। तो अब जो है हमारे रीजनल के बारे में जानेंगे कि प्रादेशिक भूगोल क्या होती है। कहते हैं क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक भूगोल के सामान्य, प्रादेशिक भूगोल स्थानीय छापों तथा सभी क्रमबद्ध जो है भौगोलिक की प्रतिक्रियाओं का जो है प्रदेशों के विभिन्न आकारों के रूप में अध्ययन की शुरुआत करता है। और प्रदेश किसी एक कारक जैसे उच्चता, उच्चवाच, वर्षा, वनस्पति, प्रति व्यक्ति आय पर आधारित हो सकती है और वे दो या अधिक कारकों संयोग से निर्मित भी हुए हो। कहते हैं बहुक्रियात्मक प्रदेश भी हो सकते हैं। प्रशासन इकाई जैसे राज्य, जिला, तहसील को भी प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। यहाँ पर जो हमारा आया है कि प्रादेशिक जो भूगोल है उसे कितने ब्रांच है। देखिए जैसे हमने क्रमबद्ध भूगोल के विषय में चर्चा किया था कि 4 ब्रांच उसके थे, तो इसके भी 4 ब्रांच के रूप में ही देखा गया है। यानी क्रमबद्ध जो हमने पढ़ा था भौगोलिक उसके 4 ब्रांच थे और इसके भी 4 ब्रांच है, यानी प्रादेशिक के भी 4 ब्रांच है। पहला ब्रांच तो यही कहता है कि प्रादेशिक अध्ययन, ठीक है। उसके बाद आता है प्रादेशिक विश्लेषण, उसके बाद आता है प्रादेशिक विकास और उसके पश्चात जो आता है प्रादेशिक नियोजन, यानी क्षेत्रीय अनुसंधान और नियोजन इसके अंतर्गत आता है। यहाँ अगर हमने जो चर्चा किया है इसमें 2 ही बात इंपॉर्टेंट रखता था कि भूगोल में 2 प्रमुख उपमा हमारे समक्ष आया था, जिसको हम क्रमबद्धता और प्रादेशिक कहते हैं, यानी सिस्टमैटिक्स और रीजनल के रूप में यहाँ हमारे समक्ष आया था। और इसके जो थे क्रमबद्ध भूगोल के 4 उपविभागों में विभाजित किया गया था, 4 इसके ब्रांचेस था। और दूसरा जो था यहाँ प्रादेशिक भूगोल के भी 4 जो है उपभाग थे और ये उपभाग अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जो कि विषय में हम चर्चा किए हैं। प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक नियोजन। तो ये प्रादेशिक भूगोल के 4 उपविभाग जो थे अत्यंत महत्वपूर्ण थे। The next topic is the most important here, a geographical and society. What is the relationship here, a geography and society? The geographical thinking and concept affect our daily discussion in the number of ways. There is the most important. There is a relation here, a geography and society. For example, when the urban master plan are made, a rural development struggles and consider. It is important to understand the physical structure. There is a physical study is the most important here, understanding the climatical condition and ability of the resource in an area. The discussion to the shift industries from a city area would be required to extension of industrial land use into the farming area. There is the most important here. This would be a displace of farmers and their source of income. Similarly, the construction of a railway line or highway case of river-based development. Many economical activity are concentrated along such a corridor now as a day with their needs to provide a relief material to all the affected persons after a flood or the earthquake. Require a good understanding of the geography of area and distribution of the relief is there functional and related to the need of is a people according to the climate and terrain. हमारा जो ये पॉइंट आया है अत्यंत महत्वपूर्ण भूगोल और समाज। देखिए ज्योग्राफी और जो सोसाइटी में क्या डिफरेंस है और ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। कहते हैं ज्योग्राफी देख के ही सोसाइटी बनाई जाती है। अगर आपने क्या किया, सोसाइटी तो बना लिया लेकिन ज्योग्राफी का अध्ययन नहीं किया तो वो कई मायने में आपको आने वाला समय में मुसीबत का सबब बन सकता है। कहते हैं कई जगह घर बना लिया जाता है बिना सोचे समझे, तो दलदल निकल जाता है और फिर उसको जो है बड़े बड़े घरों का जो है धराशायी कराना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ज्योग्राफी का जो है सोसाइटी में कितना महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। और कहते हैं कभी कभी आपदा भी आती है तो हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी रीजन के कारण ही जो है हम सारे अध्ययन कर पाते हैं। जब समाज में आपदाएँ आती है तो ज्योग्राफी का ही हम सहारा लेते हैं। तो कहते हैं भौगोलिक चिंतन और अवधारणाएं हमारे दिन पर दिन के निर्णयों के जो है विविध प्रकार से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए नगरीय मास्टर प्लान बनाते समय और ग्रामीण विकास पर विचार करते समय हम भौगोलिक आकृति, जलवायु, संसाधनों की उपलब्धता तथा लोगों की आवश्यकताओं के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप भौगोलिक स्थलाकृति, जलवायु और संसाधनों की उपलब्धता तथा लोगों की आवश्यकताओं के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करोगे तो वहाँ पर जो है सोसाइटी या कुछ भी बनाना संभव नहीं हो पाएगा। कहते हैं नगरीय क्षेत्र से जो उद्योग को हटाने का निर्णय लेने पर औद्योगिक भूमि उपयोगों के विस्तार के लिए कृषि क्षेत्र की जरूरत होती है और इससे किसान विस्थापित हो जाएंगे तथा उनकी आय का जो स्रोत नष्ट भी हो जाता है।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए कहते हैं भौगोलिक अगर क्षेत्र सही नहीं होगा तो किसान वहाँ पर कृषि भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भौगोलिक अध्ययन से हमें यही पता लगता है कि वहाँ पर कैसा क्लाइमेट होगा, कैसा कंडीशन होगा, वहाँ के जो ज़मीन है हर्ष है या उपजाऊ है, तो ये सारी बातें हमें ये भौगोलिक अध्ययन से ही पता लगता है। और इसलिए तो कहा गया कि समाज तभी विकसित होती है जब भौगोलिक कंडीशन अच्छा हो। देखिए अमेरिका, कहते हैं अमेरिका पहले अमेरिका नहीं थी, वहाँ पर लोग गए, वहाँ पर रहे और वहाँ के कंडीशन को भा गई, तो वहाँ पर वो रहने लग गए। इंडिया में भी बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। आपको पता ही होगा कि शिमला के साइड जो है या बर्फ़ जहाँ गिरती है वहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में लोग रहते हैं। तो कारण क्या है इसका? कारण ये है कि वहाँ के ज्योग्राफी रीजन जो है उनके सूटेबल नहीं है और बहुत सी चीज़ें जो है उनके फेवर में नहीं आता है। तो ये सारे जो है भौगोलिक स्थिति है, और कहते हैं भौगोलिक स्थिति देख के ही जो है सोसाइटी का निर्माण होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। तो यही बात यहाँ बताया गया कि नगरीय क्षेत्र से उद्योग को हटाने का निर्णय लेने पर औद्योगिक भूमि उपयोग के विस्तार के लिए कृषि क्षेत्र की जरूरत होती है। इससे किसान विस्थापित हो जाएंगे तथा उनकी आय के जो है स्रोत भी नष्ट हो जाता है, और इसी प्रकार रेल मार्ग तथा महामार्गों के निर्माण से दोनों और मकान बन जाते हैं। यानी जहाँ पर भी कोई सुविधा बन जाती है, रोड बन जाएगी, वहाँ मकान जरूर बना दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है यातायात के साधन के जो है रास्ता मिल जाता है। ऐसे ग्लेशियरों पर कई आर्थिक क्रियाकलाप केंद्रित हो जाते हैं। बाढ़ या भूकंप के बाद सभी व्यक्तियों को राहत सामग्री की जरूरत पड़ती है। लोगों की जरूरतों के अनुसार राहत सामग्री की उचित वितरण के लिए उस क्षेत्र में भूगोल का ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में चले जाते हो, वहाँ पर भूगोल का जो है आपको कोई नॉलेज ही नहीं है कि वहाँ पर अचानक बारिश होने लग जाती है, अचानक वहाँ बर्फ़ गिरने लग जाता है, दिन में बहुत तेज़ धूप रहती है और रात में बहुत ठंड पड़ जाती है, तो फिर आप वहाँ पर अपने आप को जो है मेंटेनेंस नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आप राजस्थान जा रहे हो, तो राजस्थान में आप सोचिएगा कि वहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है, लेकिन शायद आपको भौगोलिक स्थिति की ये बात पता नहीं है कि जैसे ही रात्रि का समय आता है बहुत ही ठंड पड़ती है। तो अगर मान लीजिए आप गर्मी के चक्कर में आपने एक कपड़ा पतला सा लेके गए हो और रात की आपने व्यवस्था नहीं किया है, तो ठंड में तो व्यक्ति ऐसे ही मर जाएंगे। तो इसी बात को यहाँ बताने की कोशिश किया गया है कि किसी भी रीजन में जाओ, किसी भी एरिया में जाओ या कहीं भी समाज बसती है, तो वहाँ पर भौगोलिक स्थिति जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है कि वहाँ पर जो है किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र है और किसका प्रभाव कैसा पड़ता है, तभी जो व्यक्ति वहाँ पर जो है जीवन यापन करने योग्य बनता है। Here are method and techniques of a geography. There is a most important topic arrive here, method and techniques of geography. The each branch of systematics and the knowledge has a content of method, tools and techniques on which is depend on the further it is a basic objectives. Geography too has its tools, techniques and method. There is the most important. The geography is a tool, has its tools and techniques and method. Important among them to the globes and map, diagram, relief model and the spatial and aesthetic method. A cartographics and consider with there is a preparation of map and diagram to be show a distribution of geographical phenomenon. An important method is a geography are and indicators and indicative of natures of various statistics or techniques and models they are used for a regional analysis and to the understand of spectral distribution and interaction. The first here is a cartography. Cartography there is the most important here. The most of use are fascinated with the map. The map there is a cartography. Is a study or practice of the making of maps and diagram. It is a representing the earth with the maps and abstract or symbols. A map have traditionally been made using to pen, ink and paper. But computer have a visualization and cartography and it is a GIS. The GIS method one can be prepared to the map and the diagram with the greater choice and the efficiency. There is the most important GIS techniques is the cartography and spectral data is obtained from the measurement and other published source and can be stored in the database from which it can be extracted of a variety of purpose. As a current trend in there is a field are moving away from the drawing with the ink or paper types. Method of map making to avoid to the creation of increasingly of dynamics interactive map that can be manipulated is a digitally. And the most commercially qualities map are now made with the map making software that fall into one of three main types.
There is computer aided data management. There is CAD. There is computer aided data management. And second here, geographical information system mean GIS, and global is a positioning system mean GPS. The GPS today is the most important, and cartography has a growing from a collection of drafting techniques into a actually science. The cartographers must be understand which the symbols conveys information about the earth most effectively and make such a map that will be encouraged to everyone used to map to find place or use it is their daily work. You know that you are used to the map for find the place used for the daily work. A cartographer must be a learned is a zero dance and the fairly advanced mathematics to understand how to shape of the earth effect the distortion of map symbol and project onto a flat surface for viewing. Geography information system deal with the storage of information about their earth for automatic intervals by a computer in a accurate manner. In addition to be earth server discipline of geography, GIS specialist must be understand computer science and database system. Apps have a traditional been used to explore there is the earth and to explore it is a resource. GIS techniques and the expansion of cartographic science has enhanced their efficiency and aesthetic power of traditional mapping. Now, as the scientific community recognizes the environmental consequence of human activities, the GIS techniques is becoming a essential tool in their effort to understand the process of global change. The various map and satellite information source can combine in a way that recreate the interaction of complex nature system. Such a visualization can help to predict and what will be happen to an area if it is the repeatedly is flooded and what change are expected if a particular industry is located. The next to be a survival to India inherited from to the British Ordnance or survival there is a NATMO is the premier organization for mapping in India. It's a map of the million of series are the well known. The organizations of the cartographic unit in the 1960th century at the French Institute is a Pondicherry brought a significant impact on development of geography in India. It is a publication of vegetation and soil maps at the scale of 1 day. So is a 1 lakh were to the very well received for their cartographic appreciation and the resource mapping, and this unit was upgraded in 1995 as the geomatics laboratory with the emphasis of computer cartography and GIS. The next here is a quantitative method in geography. There is the most important here is a quantitative method in geography. This aspect of geographical techniques deal with the numerical method most are commonly found in a geography. In addition to the spectral analysis, you are likely to find method like a cluster analysis and discriminant analysis is a geographical studies, and this is a statistical techniques are introduced to you is a later chapter, and you will be find that when you undertake the local area study, you yourself will be see how to useful this method are finding pattern and identify to relationship between space and the actives that are performed in them. Regional science method here is the most important. In the 1950th century, the regional science movement arose led to the Walter Islet on this provided a more quantitative and is an aesthetic base to the geographical question. In a contrast to their more quantitative is a tendency of traditional geography. The regional is a science comprised the body of knowledge in which like a regional economics, resource management and location theory, urban regional planning, transportation and communication, human geography, and population distribution, landscape, ecology, and environmental quality are examined for the regional development. There is the most important here a management, local location theory, urban and regional planning, resource,
इकोनॉमिक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, लैंडस्केप इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट क्वालिटी एग्जामिन फॉर रीजनल डेवलपमेंट। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, जिसमें हम मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ ज्योग्राफी के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यानी देखा जाए तो क्या इसकी विधि है और जो इसकी जो तकनीकी का है जो भूगोल में वो कितना इंपॉर्टेंट मान्यता रखती है, तो इसके विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। कहते हैं कि व्यवस्थित ज्ञान की जो है प्रत्येक शाखाओं की कुछ विविध यंत्र और तकनीकी होती है। यानी देखा जाए तो कुछ विधियां होती है और कुछ जो है यंत्र और तकनीक होती है जिसके हम द्वारा जो है उसकी अध्ययन कर सकते हैं, जिन पर इनकी बुनियादी आधारित होती है या बुनियादी नींव पे आधारित होती है। भूगोल का भी अपना एक तंत्र, तकनीक एवं विधियाँ होती है। देखा जाए तो भूगोल का भी अपना एक तंत्र होता है, तकनीक होती है और विधियाँ होती है। इसमें ग्लोब, मानचित्र, आरेख और उच्चवाच प्रतिमान और स्थानिक जो है अन्वेषण विधि होती है। कहते हैं मानचित्र विज्ञान का संबंध मानचित्रों और आरेख तैयार करने से होती है, जो कि भौगोलिक परिघटनाओं के वितरण के दर्शाते हैं। देखिए कहते हैं, अगर आप देखिएगा जनरली तो कहते हैं ग्लोब, मानचित्र, आरेख, उच्चवाच प्रतिमान, ये सारे चीज़ें जो होती है कई मानने में इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से हम भौगोलिक परिघटनाओं के वितरण के बारे में हम जान सकते हैं और ये जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट भी रहता है। भूगोल की मुख्य विधियाँ जो है आगमनिक और नियामक होती है। विभिन्न सांख्यिकी तकनीक और प्रतिमानों का जो हम प्रयोग यहाँ पर प्रदर्शित के लिए करते हैं और स्थानीय वितरण एवं अन्य क्रियाओं के लिए भी किया जाता है। देखिए बात करें मानचित्र विज्ञान की, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है कि मानचित्र विज्ञान का जो है क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। कहते हैं भूगोल में मानचित्र विज्ञान का अत्यंत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। कहते हैं हमसे अधिकतर मानचित्रों द्वारा आकर्षित होते हैं और ये बात जनरली आपने भी देखा होगा। मानचित्र विज्ञान मानचित्र व आरेख निर्माण करने का एक प्रयोगात्मक अध्ययन के रूप में देखा जा सकता है। यह मानचित्रों और प्रत्यक्षरों की सहायता से पृथ्वी की प्रस्तुति करती है। पारंपरिक रूप से मानचित्रों का जो है निर्माण जो है कलम, स्याही या कागज की सहायता से होता ही रहता है, परंतु कंप्यूटर ने मानचित्र विज्ञान की क्रांति ला दी है। कहते हैं GIS विधि के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है मानचित्र आरेख अपनी इच्छानुसार पूर्ण दक्षता से तैयार कर सकता है। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, जिसमें कंप्यूटर की दक्षता के ऊपर बात की गई है। कहते हैं आज कंप्यूटर के दुनिया में पूरा कुछ जो है बदल चुका है। कहते हैं स्थानिक आंकड़े मापन और प्रकाशित स्रोतों द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं और उसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग हेतु डाटाबेस में भंडारित भी किया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कहते हैं इसको जो है हम सेव करके भी रख सकते हैं और समय आने पर इसको जो है हम रिडक्शन भी कर सकते हैं। स्याही और कागज द्वारा मानचित्र बनाने की परंपरा अब समाप्ति होती चली जा रही है और इसका स्थान कंप्यूटर निर्मित मानचित्र ले रहे हैं। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कंप्यूटर निर्मित मानचित्र आज जो है बहुत सरल और साधारण होती है। ये मानचित्र अधिक से जो है ज्ञानात्मक और अंतक्रियात्मक भी होती है तथा अंकीय युग से इसे परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात आ जाती है। आज अधिक व्यापारिक गुणवत्ता वाले मानचित्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाए गए हैं। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आधारित आंकड़ा प्रबंधन यानी CAD के रूप में होते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो कंप्यूटर आधारित आंकड़ा प्रबंधन। उसके बाद भौगोलिक सूचना तंत्र यानी GIS का भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और भूमंडलीय स्थिति तंत्र यानी GPS का तो और भी जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं इन सारे चीज़ों का जो है आज कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है क्रांति ला दिया है और इससे मानचित्र तैयार करना बहुत ही सरल हो गया। मानचित्र कला और रेखन तकनीक के संग्रह से निकलकर जो है वास्तविक जीवन बन गई है और एक मानचित्र कला को अवश्य समझना भी चाहिए कि कौन सा संकेत पृथ्वी के बारे में प्रभावशाली सूचना भी देता है और उन्हें ऐसे मानचित्र तैयार करने चाहिए जिनसे प्रत्येक व्यक्ति जो है मानचित्रों के प्रयोग हेतु जो काफ़ी प्रोत्साहित हो और इस प्रकार प्रयोग स्थानों को ढूंढने तथा अपने दैनिक जीवन में करें। कहते हैं मानचित्रकारों की जो है भूमि गणित के साथ साथ आधुनिक गणित में भी परंपरागत होना चाहिए ताकि वे समझ सके कि पृथ्वी की आकृति निरीक्षण के लिए जो है चौरस सतह पर जो है प्रक्षेपित मानचित्र के इन्हीं के जो है विकृतों के विकास पर प्रभावित करता है। कहते हैं अगर भौगोलिक सूचना तंत्र जो है पृथ्वी के विषय में सूचनाओं का भंडार करता है जो कंप्यूटर द्वारा स्वचालित एवं उचित रीति से पुण्य प्राप्त भी किया जा सकता है। यहाँ पर जो एक GIS विशेषज्ञ के भूगोल के अन्य उप विषयों के साथ साथ कंप्यूटर विज्ञान तथा आंकड़ा संचार तंत्र की
समझ होनी चाहिए। कहते हैं पारंपरिक रूप से मानचित्रों का जो उपयोग पृथ्वी के खोज और संसाधनों के दोहन में होता जा रहा है। जीआईएस जो है तकनीकी मानचित्र विज्ञान का विस्तार है, जिसके द्वारा पारंपरिक मानचित्र की क्षमता और विश्लेषणात्मक शक्ति काफ़ी बढ़ गई है। आजकल वैज्ञानिकों का समुदाय मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को जान गए हैं तथा जीआईएस तकनीकी भूमिगत परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने का अनिवार्य उपकरण सा बन गया है। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों के उपग्रह सूचना तंत्रों को जो है मिलाकर प्राकृतिक तंत्र की जटिलता अंततः क्रियाओं को जो है पुनर्रचना की जा सकती है और इस प्रकार की सजीव कल्पना से यह भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि बार बार बाढ़ से ग्रस्त होने वाले क्षेत्र का क्या होगा या किसी विशेष उद्योग किसी क्षेत्र में स्थापित या विकसित होने से क्षेत्र में क्या परिवर्तन होंगे। तो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर। ब्रिटिश एनएस सर्वेक्षण के आधार पर जो है स्थापित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बाद राष्ट्रीय अटलस एवं विशेषक मानचित्र संग्रह यानी NATMO भारत में जो है मानचित्र निर्माण की जो है प्रमुख संस्था के रूप में देखी जा रही है। इसके 10 लाख श्रृंखलाओं के मानचित्र बहुत प्रसिद्ध भी हुए हैं। 1960 में जो है पांडिचेरी के फ्रांसीसी संस्थान के मानचित्र इकाइयों ने भूगोल के विकास में जो है उल्लेखनीय प्रभाव डाला था और इस संस्था ने जो है एक अनुपात 1 लाख के पैमानों पर बजाय वनस्पति और मृद जो है मानचित्र बनाए थे, जो कि बहुत ज़रूरी बात है। देखिए इसका अनुपात जो था 1:1 लाख के पैमाने के रूप में देखा गया, जो कि बहुत काफ़ी विशिष्ट था और इस संस्था के संस्थाओं की जो मानचित्रण के लिए खूब प्रशंसा भी इसको मिली। 1995 में इस इकाई का दर्जा बढ़कर जो ज्योमेट्रिक्स और प्रयोगशाला पर किया गया, जिसमें कंप्यूटर मानचित्र और भौगोलिक सूचना तंत्र पर काफ़ी जो है प्रभाव पड़ा। उसके पश्चात हमारे समक्ष भूगोल में मात्रात्मक विधियां। देखिए भूगोल की इस तकनीक का संबंध मुख्यतः संख्यात्मक विधियों में से है। स्थानिक विश्लेषण के अलावा जो है भौगोलिक अध्ययनों में जो है गुच्छ विश्लेषण और विविध मूलक विश्लेषण भी शामिल किया जाता है और इस सांख्यिकीय तकनीकों को आप जो है आगामी अध्याय से पढ़ेंगे भी और इसके द्वारा आप क्षेत्र में होने वाले क्रियाकलापों और क्षेत्र के बीच अंतर संबंधों को भी जान सकेंगे तथा प्रतिरूपों को भी पहचानने में बहुत काफ़ी आपको आसानी रहेगी। उसके पश्चात यहाँ पर आता है प्रादेशिक विज्ञान की विधियाँ। देखिए प्रादेशिक विज्ञान आंदोलन का आरंभ जो है 1950 में वर्सन इशार्ड ने नेतृत्व में हुआ था और इसने पारंपरिक जो है भूगोल की जो है गुणात्मक प्रवृत्तियों की विपरीत भौगोलिक प्रश्नों को और अधिक जो है मात्रात्मक और विश्लेषणात्मक आधार प्रदान भी किया। कहते हैं प्रादेशिक विज्ञान ने ज्ञान के एक जो ऐसे तंत्र का निर्माण किया जिसमें प्रादेशिक विकास हेतु प्रादेशिक अर्थशास्त्र, संसाधन प्रबंधन और स्थानीयकरण सिद्धांत, नागरिकीय तथा प्रादेशिक नियोजन, परिवहन और संचार, मानव भूगोल, जो है जनसंख्या वितरण, जो है भूदृश्य परिस्थिति की पर्यावरण गुणवत्ता का जो है विशेष इसमें आकलन की गई। तो ये बहुत बड़ी बात था कि प्रादेशिक विज्ञान विधि का जो है वॉल्टर इसार्ड ने नेतृत्व में 1950 में किया गया था और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये और साथ संसाधन प्रबंधन, स्थानिक सिद्धांत और नगरीय और प्रादेशिक नियोजन, परिवहन, संचार, मानव भूगोल, जनसंख्या वितरण और भूदृश्य परिस्थिति और पर्यावरण गुणवत्ता के विषय में विशेष बातें जो को प्रदर्शित भी किया गया। The most important topic arrive here are branches of geography. There is the most important here. A variable phenomena on the earth as a surface can be as treated as a separate list or in the association. They are classified and categorized into the physical phenomenon and there is human phenomenon. There is geography has a 3 main branches of physical. There is a geography and human geography and the regional geography. There is the most important. The geography has a 3 branch only. There is a physical geography, human geography and regional geography. There is the most important and there is a further divide to the other category. See this diagram. Flow chart is a show in the geography is the branches. There is the most important geography branches. There are 3 types only. The physical geography, human geography and regional geography. There is a first come to physical geography here or the astronomical geography, the geomorphology and the climatology, oceanographics and soil geography and social is a graphics, and the other is the biogeography is divided here a plant flora and zoo are fauna and the human ecology. There is the most important divided here of physical geography, and the next here is a human, but discuss on next, but other is a regional geography is a macro region
and the meso regions and the macro region. There is the most important regional geography is divided by three types here. And the next here the human geography. See the human geography is a further divided here. Anthropology is a culture geography and population, and here economics, political, historical, social, and settlement. But the here of population is the two types divided: the rural and urban, and the economical here are agriculture and industry and trade and transport, and settlement also is a rural and urban. There is the most important branches of geography. There is the most important for the exam view. There is a physical. First is a physical geography is important. The physical geography is a concept with the study of the explanations of physically phenomena encompassing their other such a field like geology, meteorology, zoology, and chemistry. It has become a very popular subject during to the later part of the 19th century. It has a number of sub branches which is a treat different kind of physical phenomenon. There is a first astronomical geography. It is study there is settles phenomenon which is a concern in the earth's surface, a particular sun, moon, and planet of the solar system. The next area is geomorphology. It is a concern with the study of the landform on the earth's surface. It is include the original and development of landform through the erosional, transportational, and the depositional process of water, winds, and glacier. There is the most important for the geomorphology. And the next is the climatology. There is the most important. Climatology is the study of the atmospheric conditions and related to the climate and the weather phenomenon. It includes the study of the atmospheric composition, climatic reasons, and season, etc. There is the most important, and the important also is the oceans graphing. There it is a concern with their study of various type of oceans, formulate a component and process related to the ocean floor depth, and current is the coral and reef and the continental draft, etc. The next area is soil geography. There is the most important. It is the studies of various soil forming a process. There is a physicals, chemicals, and biologically constituent. There are color and types, texture, and there are distribution of the carrying capacity, etc. There is the most important. The next area biogeography. It is the considered with the biological phenomenon is a space, especially in the term of distribution of various kind of flora and fauna species, and the geographical may be subdivided into plant and flora geographies, and the animal and fauna is a geography, and human ecology. There is the most important here. The next area is the human geography. There is the most important B part. The human geography is the systematic study of the relationship between human society and the earth's surface. It is made up to the three closely linked as a component: the spatial analysis of the human population, the ecological analysis of the relation between the human population, and it is the environmental and regional synthesis, which is the combine the first two themes in the areas differentiation of the earth surface. The human geography has been number of sub-branches here, and the first here anthropology. There it is largely deal with the terrestrial phenomena in their spatial context. And the next here cultural geographies. It is a focus on the origin component, and there is impact of the human culture and the both materials and the non-material here. And the next year economical geographies, it is referred to the study of location and distribution of economical activity at the local, regional, national, and world scale. Economical geography can be studies under the flowing head: the resource geographies, agricultural geography, and industry and transport geography. There is a most important. The next year political geography, there is the most important here. It is a study of the political phenomenon in there is a spatial contents. The main focus remains to the creations and transformation of the political and administrative reason. There is the most important. And the next year historical geography is a pattern and the temporal extent of geographical phenomena are studied in the historical geography. And the next year social geography, it is analysis of a social phenomenon in space: the poverty, health, education, livelihoods, and some important field of study in a social geography. The next year the population geography, it is the study of the various dimensions of population link
It is the population distribution, density, composition, fertility, mortality, migration, etc. And the next is settlement geography. It is the study of rural, urban settlement and their size, distribution, function, heritage, and other various other parameters of settlement as system. That is the most important. And the last year, regional geography is a separate such as the nation of four regional. There is geographically characterized and the process of change constitute and regional geography. Here the study of the main point of geography has the three main branches of physical, human and regional. That is the most important here. The physical geography deal with the nature of is a physical phenomenon such as the climatology, soil and the vegetation. There is the most important physical, and the human geographies deal with the relationship between two human society and their earth surface. There is a very short point. And geography as an interdisciplinary subject. There is a regional geography. The geography is as an interdisciplinary object. There is a very short point on the exam view. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो है भूगोल का जो है कौन कौन से ब्रांचेस है। देखिए भूगोल अगर देखा जाए तो इसकी ब्रांचेस जो है तीन पार्ट ही माना गया है जो सुचारू रूप से है। एक तो भौतिक भूगोल हो जाती है, एक मानव भूगोल हो जाती है और प्रादेशिक भूगोल। इसी के तीन के अंतर्गत जो है हमारा ये भूगोल जो है आती है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आता है भौतिक भूगोल। देखिए ये जो भौतिक भूगोल होती है वो खगोलीय भूगोल के अंतर्गत आती है और इसका जो है भू आकृति विज्ञान भी इसी में इंक्लूड है और जलवायु विज्ञान भी इसी के अंतर्गत आता है, समुद्री विज्ञान, मृदा भूगोल और जैव भूगोल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर बात हम करें यहाँ पर जैव भूगोल के, तो ये जैव भूगोल जो होती है तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होता है पेड़ पौधे विभाग और वन्य जीवन, उसका मानवीय परिस्थिति, यानी जैव भूगोल जो होती है तीन टाइप में कन्वर्ट होती है। एक पहला तो होती है पेड़ पौधे विज्ञान में, दूसरा होता है वन्य जीवन में और तीसरा जो होती है मानव परिस्थिति के अंतर्गत। तो ये जो हमारा था भौतिक भूगोल जो है डिवाइडेड हुआ है। अब उसके बाद आता है मानव, लेकिन मानव हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रादेशिक भूगोल। देखिए प्रादेशिक भूगोल जो होता है देखा जाए तो ये भी तीन टाइप्स में कन्वर्ट होता है। पहला तो होता है विविध प्रदेश, यानी सबसे विविध मतलब बड़ा, और मध्यम प्रदेश मतलब छोटा, या मध्यम का मतलब छोटा, मिडल के रूप में देखा गया है, और सूक्ष्म प्रदेश मतलब बहुत ही छोटा, जो छोटा से छोटा कल्पना जिसे कहा जाता है। इसको मैक्रो और जो मैक्रो के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है। अब चलिए देखते हैं हमारा कि मानव भूगोल जो है कितना बड़ा और कितना विस्तृत है। तो ये देखने के बाद ही हमें पता लगेगा। यहाँ पर जैसे देखने से ही पता लग रहा है कि मानव भूगोल बहुत काफ़ी विस्तृत है। सबसे आध्यात्मिक से आता है, उसका संस्कृति भूगोल आता है, जनसंख्या आता है, आर्थिक आता है, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक। तो ये सारे के सारे भूगोल के पार्ट ही हैं। अगर हम बात करें यहाँ जनसंख्या, तो जनसंख्या दो तरह से ही होती है। एक तो आपने अर्बन और रूरल की बात जानते ही हो, यानी आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों ही आएंगे। अगर आर्थिक हम लेंगे तो उसमें नगरीय और कृषि औद्योगिक के अंतर्गत आता है। अगर हम बात यहाँ व्यापारिक और परिवहन की करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें जो है मिसिंग है। आप इंग्लिश में जो बताई गई थी उससे जो है आप सुचारू रूप से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत से जो है मिसिंग है जो आपको यहाँ दिख नहीं रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप इंग्लिश से जो है आसानी से जो है लिख सकते हो और समझ सकते हो। तो इंग्लिश वाला पार्ट में ज़रूर इसका जो है डायग्राम आप बना लेना, क्योंकि एग्ज़ाम व्यू से ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि जो बच्चे ज्योग्राफी के सिलेबस पढ़ते हैं उनके लिए ये ब्रांचेस जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें हिंदी में जो है बहुत जगह कट पड़ी हुई है, नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है। तो आप जो है इंग्लिश वाले पार्ट से जो है उसका जो है पूरा डायग्राम बना सकते हो। देखा जाए तो धरातल की विभिन्न परिघटनाओं के अलग अलग सामूहिक रूप में लिया जा सकता है और इन्हें भौतिक तथा मानवीय परिघटनाओं के रूप में वर्गीकृत किया भी जा सकता है। और इस प्रकार भूगोल की तीन प्रमुख शाखाएं जो हमने अभी देखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें हम भौतिक भूगोल, मानवीय भूगोल और जो है प्रादेशिक भूगोल को जो है विस्तार पूर्वक हमने समझा भी कोशिश किया है। अब इसी को जो है हम विस्तार पूर्वक जो है कुछ जानने की कोशिश करेंगे किस भूगोल में क्या चीज़ें खासियत है। तो चलिए देखना बहुत ज़रूरी रहेगा कि इन परिघटनाओं से क्या यहाँ पर आती है उभर के। तो सबसे पहले हमारे समक्ष तो यही आता है भौतिक भूगोल। देखिए भौतिक भूगोल के कहते हैं जो है भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या और अध्ययन करता है। साथ ही यह जो है भू भाग शास्त्र और मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन शास्त्र से भी काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। और कहते हैं 19वीं शताब्दी के जो है
पंद्रातन में विषय बहुत ही लोकप्रिय भी हुआ और इसकी कई उपशाखाएं हैं जो विभिन्न भौतिक परिघटनाओं के विवेचन करने के लिए साक्ष्य हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो यही आता है खगोलीय भूगोल। देखिए खगोलीय भूगोल का क्या अर्थ है। यह पार्थिव घटनाओं के अध्ययन करता है जिनमें मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह के साथ सूर्य, चंद्रमा और सौरमंडल के ग्रहों के जो शामिल किया इसके जाता है। उसके बाद भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी के जो है स्थल रूपों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत जलवायु और हिमानी के जो अपरदनात्मक, पर्यायात्मक और स्फीयात्मक कार्य द्वारा जो स्थल रूपों की जो है उत्पत्ति एवं विकास शामिल इसमें हुआ है। तो ये भू आकृति के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें जलवायु विज्ञान की तो कहते हैं जलवायु विज्ञान वायुमंडलीय दशाएं और संबंधित जलवायविक और मौसमी परिघटनाओं का अध्ययन करता है और इसके अंतर्गत वायुमंडलीय संगठन और जलवायविक प्रदेश तथा मौसम आदि का अध्ययन में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। जलवायु का मतलब यही होता है जो हवाएं चलती है, ये सब जो होती है, तो ये परिघटनाओं को जो है इसमें आता है। उसके पश्चात है समुद्री विज्ञान। देखिए समुद्री विज्ञान भी काफ़ी मायने में इंपॉर्टेंट रखता है। यह जो है महासागरीय तल की गहराइयों, धरातलों और प्रबल भित्तियों और महाद्वीपीय विस्थापन आदि से संबंधित महासागरीय संगठनों का अध्ययन इसमें किया जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं अगर बात करें हम मृदा भूगोल का यानी मिट्टी भूगोल का, तो यह जो है विविध मिट्टी निर्माण प्रक्रिया के साथ साथ इसके जो है भौतिक और रासायनिक और जैविक संगठन, रंग, आकार और संरचना, वितरण और वहन क्षमता आदि का भी अध्ययन करता है। जो बच्चे मृदा भूगोल लेते हैं उनके में जो है मिट्टियों के रंग, उनकी उपजाऊ क्षमता, उनकी वितरण किस प्रकार से है और उनके क्या खासियत है, तो ये सब बातें जो है हम जो है मिट्टी भूगोल यानी मृदा भूगोल के अंतर्गत आता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर बात हम करें जैव भूगोल के, तो जैव में तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हम जीव जंतु की इसमें बात करने वाले हैं। जैव भूगोल यह स्थान की जैविक घटनाओं को अध्ययन से संबंधित है, यानी जैविक यानी जीव जंतु जो जीवित है या जो जीवित हैं उन्हीं के विषय में इसके जो है विस्तार पूर्वक जानने की हमें इसमें ज्ञान मिलती है। विशेष तौर पर विभिन्न प्रकार के वनस्पति और वन्य जीवों के वितरण का अध्ययन इसमें किया जाता है, यानी इसमें पेड़ पौधों को भी लिया जाता है और जीव जंतुओं को भी इसी के अंतर्गत लिया जाता है। जैव भूगोल को जो है पादप और वनस्पति भूगोल या जंतु भूगोल और मानव पारिस्थितिक रूप में जो है उपविभाजित भी किया जा सकता है। यानी अगर देखा जाए तो जैव भूगोल जो है वनस्पति भूगोल, पादप भूगोल, जंतु भूगोल और मानव पारिस्थितिक के रूप में भी इसको परिभाषित किया जाना कोई विशेष रूप से बात रखती है। साथ हमारे समक्ष दूसरा जो था वो था ब्रांचेस के अंतर्गत मानव भूगोल। देखिए मानव भूगोल भी कई मायने में इंपॉर्टेंट रखता है। मानव भूगोल पृथ्वी सतहों और जो है मानव समुदाय के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है और ये तीन घटकों को निकटतम रूप में जोड़ता है। सबसे पहला जो है मानवीय जनसंख्या का स्थानिक विश्लेषण करता है। उसके बाद मानवीय जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संबंधों की परिस्थिति का जो है विकास करता है। देखा जाए तो जो मानव भूगोल है विश्लेषण और प्रादेशिक संश्लेषण करने के लिए भी आधारित होती है, जो कि धरातल के क्षेत्रीय विभेदीकरण से जो है पहली दोनों विषय वस्तुओं को जोड़ता भी है। अगर मानव भूगोल की कई उपशाखाओं में जो है विभक्त हो गया है, तो पहली तो उपशाखाएं के रूप में जो है मानव विज्ञान भूगोल ही आता है। यह बड़े पैमानों पर स्थानीय संदर्भ में विविध प्रजातियों का जो है अध्ययन करने के लिए सक्षम होता है। यानी मानवीय विज्ञान भूगोल में जो है बड़े पैमाने पर हम स्थानीय संदर्भ में विविध प्रजातियों का अध्ययन करना इसमें सुनिश्चित होती है। उसके पश्चात आता है संस्कृति भूगोल। यह मानवीय संस्कृतियों की उत्पत्ति, संघटकों और प्रभावों की चर्चा इसमें किया जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके पश्चात है आर्थिक भूगोल। यह आर्थिक भूगोल भी कई मायने में इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। यह स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और विश्व सतह पर आर्थिक गतिविधियों की जो है अवस्थिति व वितरण का अध्ययन करता है। कहते हैं आर्थिक भूगोल का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है, जिसमें हम संसाधन भूगोल हो गया, कृषि भूगोल हो गया, औद्योगिक एवं परिवहन भूगोल भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये संसाधन भूगोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और आर्थिक भूगोल जो है इसके प्रमुख ब्रांच के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारे समक्ष आता है राजनीतिक भूगोल। देखिए राजनीतिक का भी एक भूगोल होती है। यह स्थानीय संदर्भ में राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करता है और इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रदेशों के उद्भव एवं रूपांतरण की व्याख्या करना निश्चित किया गया है। उसके पश्चात है ऐतिहासिक भूगोल। इतिहास यानी हिस्ट्रिकल जो है भूगोल के अंतर्गत आता है, यानी भौगोलिक परिघटनाओं के स्थानिक एवं कालिक अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यानी भूगोल में जो है ऐतिहासिक का भी अपना विशेष महत्व रखता है।
उसके पश्चात है सामाजिक भूगोल। देखिए ये जो है स्थान की सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करता है। निर्धनता हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जीवन यापन हो, सामाजिक भूगोल के कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जो कि सामाजिक भूगोल के लिए अंतर्गत आता है। उसके बाद है जनसंख्या भूगोल। यह जनसंख्या के विविध पक्ष जैसे जनसंख्या वितरण, घनत्व, संगठन, प्रजनन क्षमता, मतदाता प्रवास आदि का अध्ययन करना इसमें सुनिश्चित किया गया है। उसके बाद अधिवास भूगोल। यह ग्रामीण नगरीय अधिवासों के आकार, वितरण, प्रकार, पदानुक्रम और अधिवास व्यवस्था के संबंधित अन्य आधारों का अध्ययन करता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात आता है अंतिम पॉइंट, प्रदेशी भूगोल। प्रदेशी भूगोल जो है आखिरी ब्रांच है, तीसरा ब्रांच है। प्रदेशी भूगोल के अंदर प्रदेशों के जो है सीमांकन और उनकी जो भौगोलिक विशेषताओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो कहते हैं ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कोई प्रदेश के जो है सीमांकन कैसा है, उसकी भौगोलिक दशाएँ क्या है, उसकी विशेषताएँ क्या है, तो ये प्रदेशी भूगोल के अंतर्गत आता है, जिसमें सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। कई मायने में देखा जाए तो प्रदेशी भूगोल कई इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि इतना महत्वपूर्ण था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्रोत्साहित कीजिए कि आपके लिए और भी इसी तरह से वीडियो बनाया जाए। और प्रोत्साहित करने का दो ही कार्य है, एक तो दूसरे बच्चे तक इस वीडियो को पहुँचाना है, और दूसरी बात होता है कि इसको सेव करना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होगा, साथ में आप दूसरा कोई वीडियो देखना चाहे तो वो भी आप नहीं देख पाओगे। अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर नहीं आके कोई दूसरा वीडियो आएगा जो पहले से यूट्यूब में मौजूद है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि त्रिपाण स्टडी सेंटर का लाभ उठाएं तो इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आपके फ़ायदे में रहेगा। इससे आपको होम पेज मिल जाएगा और होम पेज पे सभी वीडियो जो है आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जो वीडियो देखना है और समझना है और उसके बाद अच्छे अंक प्राप्त करना।